تو پھر نا جونگکوک بولتا ہے مجھے پتہ ہے پاپا، لیکن میں کیا کروں، میں کبھی کبھی بھول جاتا ہوں۔ تو نا جونگکوک کے ڈیڈ بولتے ہیں بھولنے سے کام نہیں چلے گا، ہمیں اس کا دھیان رکھنا پڑے گا۔ تم نے اس کی رسپانسبلٹی لی ہے جونگکوک، اور اس نے تمہیں کوئی جھوٹ نہیں بولا یا پھر کچھ تم سے تو چھپایا نہیں تھا۔ اس نے جو بولا تھا، جو کیا تھا، وہ اس نے مانا تھا۔ وہ جو ہے تمہیں اس نے پورا کا پورا سچ بتایا تھا۔ تم ایسے اس کے ساتھ نہیں کر سکتے، تمہیں اس کی رسپیکٹ کرنی ہوگی۔ تو نا جونگکوک بولتے ہیں میں اس کی پوری رسپیکٹ کرتا ہوں پاپا، لیکن میں کیا کروں، میں نا زیادہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے نا، میں سب کچھ نا بہت ہی زیادہ ہی میسڈ اپ کر دیتا ہوں، اسی وجہ سے شاید وہ مجھ سے ناراض بھی ہے۔ تو نا جونگکوک کے ڈیڈ بولتے ہیں آرم بولتے ہیں ہمیں اس کا دھیان رکھنا ہوگا، ہم نے اس کی رسپانسبلٹی لی ہے جونگکوک، ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ اور ہم نے یہ پوری جان کے کہ وہ کیسا ہے، اس کی ہیلتھ کیسی، اس کی مینٹل سٹیٹ کیسا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس نے ہم سے جھوٹ بول کے تم سے شادی کی ہے جونگکوک، اس نے تم سے پراپرلی ساری چیزیں بتائی ہے اور پریکٹیکلی تمہیں دکھایا بھی ہے اس نے۔ ہم اس کو دوش نہیں دے سکتے جونگکوک، ہم ٹوٹلی اس کے اوپر یہ نہیں تھوپ سکتے کہ اس نے ہم سے چیٹ کیا ہے، ہمیں غلط انفارمیشن دی ہے، نہیں، اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے جونگکوک۔ ہم نے سب جان کے بوجھ کے سمجھ کے سمجھا کے اس کو اپنی زندگی میں لایا ہے، تو ہم ایسا نہیں کر سکتے اس کے ساتھ، ہم اس سے فرسٹریٹڈ نہیں ہو سکتے، ہم اس سے پیار کریں گے، ہم اس سے پیار کرتے تھے، پیار کرتے ہیں، پیار کرتے رہیں گے، اور ہم نے اسے ویسے ہی اپنایا تھا جیسے وہ ہے، اور اس نے بولا تھا کہ وہ ایسا ہی ہوگا، اگر اس کی زندگی میں تم ایسے آ سکتے ہو تو تم آ سکتے ہو۔ تو تم نے چوز کیا تھا جونگکوک، اس نے تمہارے اوپر کوئی بھی زور زبردستی نہیں کی تھی یا پھر تمہیں بلیک میل نہیں کیا تھا، اس نے تو تمہیں اپنی زندگی سے دور جانے کے لیے بہت بار بولا ہے۔ تو ابھی تم اس کو زیادہ بول بھی نہیں سکتے کچھ، کیونکہ اس کی کوئی غلطی ہوگی ہی نہیں، کیونکہ اس نے تمہیں کبھی بھی نہیں بولا کہ اسے اپنا لو، اس کے ساتھ رہو، یہ تم تھے جو کرنا چاہتے تھے، وہ تم تھے جو تم چاہتے تھے اس سے شادی کرنا، اور ابھی تمہیں یہی ماننا پڑے گا، اس کی مینٹل کنڈیشن کے بارے میں تمہیں پتہ ہے۔ تو نا جونگکوک بولتا ہے ڈیڈ میں یہ نہیں بولا کہ مجھے نہیں پتہ ہے، مجھے پتہ ہے سب کچھ، میں نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے کیونکہ میں اسے پیار کرتا ہوں پاپا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے ریئیکٹ کروں جب وہ بہت ہی زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جاتا ہے۔ تو بولتا ہے اس نے تمہیں بولا تھا کہ اگر اس کی زندگی میں آؤ گے تو تمہیں اس کا ہی رہنا پڑے گا، اسے وقت دینا پڑے گا جونگکوک، تم اس کو ٹھیک کر سکتے ہو، وہ ٹھیک ہو رہا ہے، ابھی تب جب وہ تھا اکیلا تبھی وہ مہینے میں 4 ہفتے اس کا یہ اسٹیج رہتا ہے، ابھی وہ 3.5 میں 7 ہفتے کے لیے یہ ہوتا ہے، دھیرے دھیرے وہ ٹھیک ہو رہا ہے جونگکوک، تم ایسے پیشنس نہیں کھو سکتے۔ تو جونگکوک بولتا ہے نہیں پاپا میں پیشنس نہیں کھو رہا، لیکن تونا بولتا ہے تم اس سے اب نہیں سکتے، تم نے اس کو پا لیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ابھی اس کو چھوڑ دو گے۔ تو جونگکوک بولتا ہے نہیں ڈیڈ، میں اس کو کیوں چھوڑوں گا، میں اس سے پیار کرتا ہوں، کبھی نہیں۔ تو بولتا ہے تم جیسے ریئیکٹ کر رہے ہو نا جونگکوک، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم اس کو چھوڑنا چاہتے ہو، تو ایسا کبھی مت کرنا، تم مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور میرا تم بہت ہی گندا سائڈ دیکھو گے اگر تم نے جونگکوک کو چھوڑا بھی۔
तो जोंगकुक बोलता है नहीं डैड, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। तो बोलता है सोचना भी मत। फिर ना वहाँ पे आराम चला जाता है। तो जोंगकुक बोलता है पापा आप मुझसे गलत समझ रहे हो बाबा, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरा संभालना पड़ता है, मेरा मेंटली ब्रेक डाउन हो रहा है, इसीलिए मैं किसी और को नहीं चाहता अपनी लाइफ में। मैं मेरे लिटिल वन से, मेरा ट्रबल मेकर से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसका डर हूँ और मैं उसका डर ही रहना चाहता हूँ। मैं उसको कभी भी अपने से अलग नहीं कर सकता। मैं उसके बगैर ज़िंदा ही नहीं रह पाऊँगा। वो मेरी दुनिया है, मेरी धड़कन है, मेरी रूह है वो। मैं अपनी रूह को खुद से अलग नहीं कर सकता पापा। आपको पता है मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उसको ध्यान से रख नहीं पा रहा हूँ। उसको चोट लग रहा है और उसकी मेंटली हालत और बिगड़ रही है। मैं क्या करूँ? मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा ही मैं खुद से डिसअपॉइंटेड हूँ, इसीलिए मैं उसके ऊपर निकाल रहा हूँ। मुझे पता है कि ये गलत बात है, मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ पापा? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता, ना पकड़ सकता। मुझे नहीं पता कि मैं क्या फ़ील करूँ, लेकिन मैं जो भी फ़ील कर रहा हूँ ना, वो बहुत गंदा लग रहा है पापा, बहुत गंदा। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ पापा। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, मैं इसे उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं मैं उसे ऐसे देख नहीं सकता, इसीलिए शायद मैं ऐसे रिएक्ट कर रहा हूँ। और मुझे आप गलत समझ रहे हो डैड, गलत क्यों समझ रहे हो मुझे? दूसरी तरफ से तेहांग को डॉक्टर देखता है और डॉक्टर तो भाई भड़क जाता है सबके ऊपर, क्योंकि सबको मतलब बहुत ही क्लियरली सब लोगों को समझाया था, लेकिन कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। वो ना वहाँ पे जोंगकुक आता है और बोलता है कि आपकी बात हम समझ रहे हैं, लेकिन वो तो नहीं समझता ना। तो बोलता है हाँ मुझे पता है कि वो नहीं समझेगा, लेकिन उसके सामने किसी ने झगड़ा किया है, शायद कोई कुछ हुआ है, चोट की वजह से वो ऐसा नहीं रिएक्ट कर रहा है। उसका मेंटली ऐसे नहीं आ रहा है कि उसने चोट आई है इसलिए उसका मेंटली ऐसे बैकग्राउंड हो रहा है, नहीं उसका इसलिए नहीं हो रहा है, उसके सामने कुछ हुआ है। तो ना वहाँ पे आरम और जोंगकुक एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपना सर नीचे कर लेते हैं। दोनों वहाँ पे जिन उन दोनों के ऊपर चिल्लाता है, बोल रहा है कि तुम दोनों का दिमाग खराब है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ उसके सामने लड़ रहे थे, गधे कहीं के, क्या दिमाग नहीं है क्या तुम लोगों के पास? सुनना, जब जोंग तेहंग आया था ना, तेहंग से प्यार कर बैठा था वो, तेहंग इतना ज़्यादा क्यूट सा फ्रिजियल सा बच्चा था ना, मतलब वो एकदम मतलब होता ना क्यूट सा बेबी, जो चाहते हैं जो जिनके लिए एकदम परफेक्ट गिफ्ट था, उसका टेडी बियर था तेहंग। तेंग से वो बहुत प्यार करता था, वो जोंगकुक से भी ज़्यादा तेंग से प्यार करता था। जब जोंगकुक तेंग को डांटने ही वाला होता है ना, तो जिन आ जाता था और जोंगकुक को डांट देता था। कभी भी जिन ना तेंग को डांटा नहीं था, तेंग ने कुछ भी किया हो, कुछ भी, वो हमेशा से तेंग को ना मतलब प्रोटेक्ट करता था एक मदर की तरह। तो ना वो तेंग को ना बहुत प्यार करता था, इसलिए ना वो सबके ऊपर चिल्ला रहा था, और इसलिए वो चिल्लाए गई। नींद आ रही है गाइस बहुत ज़्यादा। तो ना जोंगकुक बोलता है मॉम सॉरी, तो बोलते सॉरी गया भर में, तुम्हारा सॉरी लेके मैं क्या करूँगा? हाँ, तुम लोगों का क्या दिमाग खराब होता है? तुम लोग ना एक नंबर के गधे हो, गधे। और आरएम को देख के बोलते तुम एक गधे हो, तुमने पैदा भी एक गधा ही किया है। तो ना बोलते हाँ अच्छा काम करे तो तुम्हारा बेटा, बुरा काम करे तो मेरा बेटा। ये क्या बात हुई भाई? तो बोलते यही बात है, सारी बुरी आदतें तुम्हारी जैसी तो है ये एक नंबर का गधा है। तो ना जिन बोलता है ऐसा, तो आरएम बोलता है हाँ तो गधा ही है, गधा का बेटा गधा ही होता है। तो बोलता है जिन बोलता है तुमने मुझे गधा बुलाया? तो बोलते तुमने तो मुझे गधा बुलाया, वो तो मेरा बेटा है ना। तो बोलता है वो हाँ तुम ही गधे हो। तो बोलते हाँ। तो ना वहाँ पे
शुगो आता है, बोलता है कि अंकल आपने अंकल को गधा बोला ना। तो ना आर्यन बोलता है तू अपना मुंह बंद रख गधे कहीं के। तो बोलता है मैं गधा नहीं हूँ, आप दोनों गधे हो। आज शुगो ऐसा बोलता है। तो शुगर का कान पकड़ लेता है आर्यन। आर्यन बोलता है क्या बोला तूने। तो बोलते सॉरी 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 प्लीज कान छोड़ो, दर्द हो रहा है। तो बोलता है दर्द होना चाहिए। तो वहाँ पे जिन बोलता है कि हमें उसके लिए कुछ प्रिपेयर करना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा चोट पा रहा है, मुझे नहीं पता कि हम लोग उसको कैसे रोके, मुझे नहीं पता। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मेरे तेते को ऐसे देख के। मेरे दिल को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ना बोलता है कहाँ पे है दिल। तो ना फिर नजीम ने उसका दिल दिखाता है और बोलता है हाँ तेरी तरह हेड से छोटा है। ऐसा ना वो भी होता है। और वो भी को ना जो मतलब जिमिन मतलब पिलो उठा के मार देता है। बोलता है कि तेरा मुंह बंद रख। मैंने कब कितनी बार बोला है कि मेरे हाइट के ऊपर कोई कमेंट मत किया कर वरना मैं तेरे का जान ले लूंगा। तो ना जिन बोलता है कि जिमिन सॉरी शुगो बोलता है जो जिमिन छोड़ो, अभी तेह के बारे में सोचो। तुम अपने हाइट के बारे में सोचोगे फिर भी नहीं बढ़ेगा। तुम जैसे हो जितने हो उतने ही रहोगे। तो ना वहाँ पे जिमिन बोलता है कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। तो बोलता अच्छा ठीक है मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ। तो मुंह बंद रखने से क्या फैक्ट चेंज हो जाएगा कि तुम अभी क्या बोलते हैं सॉरी गाइस, तुम अभी छोटे हो। तो ना जिमिन बोलता है तुम बहुत बोल रहे हो, तुम्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। तो ना वहाँ पे शुगर बोलता है नहीं 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 मैं मजाक कर रहा था बेबी, आई एम जस्ट जोकिंग। तो ना वहाँ पे जिमिन बोलता है हाँ तुम बाहर सोओगे, मेरे पास बिल्कुल नहीं आओगे। तो ना जो शुगर बोलता है पर बेबी यू आर जोकिंग ना। फिर ना जिमिन बोलता है नो आई एम नॉट जोकिंग। ऐसा बोल के वो ना उसको चिल्लाने लगता है। तो ना वहाँ पे सब लोग ना ये सब बातें कर रहे थे। वहाँ पे जो थे को मतलब वो फिर से होश में आता है। तो ना होश में आने के बाद ना जिनको हग करके बोलता है देखो ना दादा बहुत डर रहे हैं। मैं 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 मैंने फिर ना वहाँ पे जिन बोलते नहीं तुम्हारी वजह से नहीं दादा ना, तुम्हारे दादा को पापा बता रहे थे कि तुम्हें चोट लग गई, तुम गलत समझ बैठे और तुम्हारी हालत फिर से खराब हो गई। ऐसा नहीं करते ना बच्चा, तुम्हें पता है ना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, तुम मेंटली स्ट्रेस नहीं ले सकते, ऐसा क्यों लेते हो। मम्मा को बोलो कि क्या हुआ है, मम्मा सब कुछ कर देगी। मम्मा सबको डांटेगी, मम्मा सबको बोलेगी कि मेरे तेते को क्यों तुम लोगों ने परेशान किया। मेरा तेते तो बहुत अच्छा बच्चा है और मेरा तेते कितना क्यूट है, कितना ज़्यादा हम्बल है और कितना ज़्यादा अच्छा है और मेरा तेते तो तेरी भी जैसे दिखता है। तो ना तेम बोलता है आपको पता है मम्मा मम्मा मुझे ना एक सपना आया कि मैं कहीं पे उड़ रहा हूँ। तो बोलते कहाँ पे। तो बोलते वहाँ पे सिर्फ पानी पानी था और ना सब लोग बोल रहे थे कि हम जा रहे तुम भी आना ठीक है। तो ना वहाँ पे जो को मतलब जिन नते थे इनको जोर से हक कर लेता है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अभी वो क्या फील करना चाह रहा है, उसको क्या फील करना चाहिए। वो तेंग को खोना नहीं चाहता, वो तेंग से बहुत प्यार करता है। उसकी खुशियाँ आई थी जब तेंग उसके घर में आया था। तो ऑब्वियसली उसकी खुशियों को वो अपने से दूर नहीं करना चाहेगा। वो ऑब्वियसली वो अपनी तेंग को बहुत प्यार करता है और अपने पास ही रखने की कोशिश करेगा। वो तेंग को अपने से दूर तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो ना वहाँ पे जिन बोलता है कि तेते ऐसा नहीं बोलते और मेरा तेते तो कितना ज़्यादा ब्रेव है, कितना ज़्यादा हम्बल है और कितना ज़्यादा क्यूट है। मेरे तेते को कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। मम्मा प्यार करती है ना तो मम्मा के पास नहीं रहोगे आप। तो ना तेम बोलता है हाँ मैं मेरे मम्मा के पास ही रहूँगा। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। नॉइस आइले तो सॉरी गाइस, मैं सिर्फ ज़रूर दूँगी और
फिर आएगा एक क्लियर वीडियो। आई लव यू गाइस, बाय बाय।